Hey guys, it's Uzair here. So I just wanted to record this quick video in a little bit of a different setting and with a little bit of a different vibe, where I talk about three problems that men between the ages of 20 to 35 in our country specifically face. And these are problems that really choke people of our society. And इसकी वजह से वो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाते एंड उन्हें कॉन्स्टेंटली इसी तरह लगता है कि वो अपनी लाइफ के अंदर एक रट के अंदर फंसे हुए हैं, जहाँ से उन्हें नहीं समझ आ रही कि कौन उन्हें निकालेगा, किस तरह वो बाहर निकल सकते हैं. And I just want to be talking about these three problems as someone who has solved them just a little bit more than you probably have. I'm not coming here from a place of privilege where I say that I am above you. I'm just saying that I took a little bit of action and I have gained some progress on these specific realms, and I just want to help you guys in this specific video. Now, you know, हम लोग एक proper setup और proper studio के अंदर नहीं बैठे हुए जिस तरह मैं normally बैठता हूँ अपने studio के अंदर here in my office. I'm just sat on the rooftop of my office and I just want to be speaking to you raw without a script and really helping you guys get rid of these problems, right? And आज जो है वो 10 रमज़ान है, तो you know अफ्तारी के बाद जो है वो थोड़ी सी एनर्जी वगैरह राइज कर जाती है एंड मेरे माइंड में ये आइडिया आया एंड आई थॉट कि यार genuinely if someone made this video for me when I was starting out in the online business world, in the personal development kind of routines and vibes that we like to get into, so this video would genuinely have helped me. And the three problems that we're going to be talking about is financial restlessness, log kya kahenge, and the marriage status dilemma. So first let's talk about financial restlessness. इस वक्त हमारी सोसाइटी के अंदर स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम है. हम लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, राइट? मनी जनरली सिंस आवर चाइल्डहुड्स बहुत स्कैर्स रहा है. स्पेसिफिकली इफ़ यू कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे आपको कंसिस्टेंटली यही बताया जाता है, लेट्स से कि आप जब छोटे होते थे तो आप अपने घर वालों को बोलते थे कि यार मैंने एक कंसोल लेना है, राइट? एंड आपके घर वाले आपको बोलते थे कि यार हम लोग मिडिल क्लास हैं, हम लोग इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है. इन द सेम वे व्हेन यू यूज्ड टू सी मोर एफ्लुएंट किड्स कमिंग आउट ऑफ देयर नाइस कार्स, आप जो है वो एक नॉर्मल सी गाड़ी से निकलते थे जब आप अपने स्कूल में ड्रॉप होते थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट यूज्ड टू अफेक्ट यू एज वेल. एंड हम लोगों ने कंसिस्टेंटली बचपन से लेके बड़े होने तक, आज मैं भी 26 years of age हूँ, माई होल फ्रेंड सर्कल इज़ बेसिकली पीपल हु आर डूइंग जॉब्स, एंड आई एम अस्यूमिंग के मोस्ट ऑफ यू गाइज are in your late university years, probably doing a job or probably transitioning from your late 20s to your late early 30s as well. एंड ये वाले प्रॉब्लम्स जो है वो आपको आज तक बॉदर कर रहे हैं एंड यू वांट कि इसका जो है वो एक देर पा किस्म का सोल्यूशन निकला जाए यार, राइट? एंड you know maybe you're earning well as well but you don't feel कि आपको आपकी इनकम के ऊपर कंट्रोल है, and there's always this sense of restlessness कि maybe I am doing something wrong where there are people who are less talented than me who are making more money than me, and why is it that way? एंड बहुत से लोगों का ये भी परसेप्शन होता है कि आई बिन सच अ गुड पर्सन ऑल ऑफ माई लाइफ, व्हाई इज इट दैट पीपल हु आर वर्स देन मी, why is it that they're making more than me, why is it that people who are less skilled than me making more than me? Well, let me just tell you and give you some cold hard truths. पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो अगर आप एक जॉब करते हैं तो while this might strike you as little bit of an abrasive opinion, हमारे साथ इस तरह होता है, हमारा एक बिलीफ बना हुआ होता है कि द ओनली वे टू वेल्थ इज़ अ जॉब, राइट? हम लोगों को बचपन से लेके बड़े होने तक जो है वो ये चीज़ दिखाई जाती है कि हम लोग स्कूल जाते हैं, हम लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं, एंड देन हम लोग इवेंचुअली एक अच्छी जॉब लैंड करते हैं, शायद CSS करते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर लेते हैं, मे बी MBBS करते हैं, एक अच्छे और रिस्पेक्टेबल किस्म के डॉक्टर बन जाते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो है वो हमारी अच्छी जॉब लगती है, हमारी प्रोग्रेशन होती है हमारे करियर के अंदर, एंड देन वी बिकम सक्सेसफुल एंड वी लिव हैप्पीली एवर आफ्टर. बट व्हाट इफ़ आई टोल्ड यू कि इफ़ you were to genuinely look at society today, आपको यही अंदाज़ा होगा कि all of this is basically a facade. It is an illusion and it is a lie that's been sold to you. Because the whole modern education system, what it is basically designed to do is it is designed to basically create more and more employees, right? It is not designed to make entrepreneurs. It is not designed to create critical thinkers. It is designed to create obedient employees, people who shut up and listen to what's been told to them, and as a result of that they basically build careers which they don't really feel passionate about, which they don't really feel कि वो किसी पर्पस को सर्व करें. इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि वो एक मैकेनिकल तरीके से बस काम कर रहे होते हैं, उनका अपने काम के अंदर दिल भी नहीं लग रहा होता. उन्हें इस तरह लगता है कि यार जितना हम कमाते हैं उनमें से ज़्यादातर पैसे तो हमारे अखराजात के अंदर लग जाते हैं, एंड पे हमारे लिए कोई कुछ बचता ही नहीं है. एंड देन देयर आर पीपल हु आर मच लेस टैलेंटेड देन देम, हु आर मेकिंग मच मोर देन देम.
एंड वाई इज इट दिस वे, राइट? यू हैव बिन गुड ऑल ऑफ योर लाइफ। आपने अपने पेरेंट्स की बचपन के दौरान बातें सुनी, आपने सोसाइटी की बात सुनी व्हेन यू वेंट एंड डिड अ रिस्पेक्टेबल काइंड ऑफ डिग्री, बट फिर भी ऐसा क्यों हुआ कि यू हैव एंडेड अप इन अ प्लेस कि जहाँ पे इट्स नॉट रियली फुलफिलिंग? मे बी यू ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी ईयर्स एंड योर स्कूल ईयर्स आपने ग्रेड्स भी अच्छे लिए, तो वाई इज इट कि आपसे कम ग्रेड्स वाले आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं? इट इज़ बिकॉज ऑफ वन थिंग एंड दैट इज लेवरेज। जॉब्स के अंदर, लेट मी जस्ट टेल यू, जॉब्स के अंदर लेवरेज नहीं होती। एंड जॉब्स जो है ना, वो आजकल के टाइम के अंदर, आई वॉज लुकिंग एट दिस स्टैट कि 1970s के अंदर जो है ना, वो यू यूज टू बेसिकली नीड टू ओनली सबमिट 3 CVs इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब। यानी कि आपने 3 जगह पे जॉब एप्लीकेशंस सेंड की एंड आपकी जॉब लग जाती थी। Guess how many job applications you have to give to land a job in 2026? Do you know what the stat says? 1700. 1700 ऑन एवरेज आपको जो है वो एप्लीकेशन सेंड करनी पड़ती है, उसके बाद आपकी जाके जॉब लगती है। एंड जो जॉब लगती है, क्या वो फुलफिलिंग होती है? क्या वो हाई पेइंग होती है? क्या उसके अंदर प्रोग्रेशन और ग्रोथ हमें नज़र आ रही होती है, या क्या उसके अंदर एक हमें डेड एंड ही नज़र आ रहा होता है? आई वॉन्ट यू टू जेन्युइनली आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन. Who have you seen in today's day and age who is genuinely rich, which you deserve to be? You deserve a life के जहाँ पे आप true abundance को experience करो in your 20s, in your early 30s. Who have you seen who is young, who makes a lot of money and who does that using a job? Now I don't say this from a place of कि यार मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई आप बिजनेस ही करो, लेकिन मैं लाइक जेन्युइनली आप लोगों से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि who have you seen who is young, who is wealthy, who did that using a job? इस वक्त बेसिकली क्या है कि ये ओपिनियन आपको बुरा इस वजह से लग रहा है बिकॉज आपके मैं एक बिलीफ को चैलेंज कर रहा हूँ। एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट व्हिच इज कॉल्ड कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस बेसिकली मीन्स कि आपका एक बिलीफ होता है और आपकी जो है वो पर्सनालिटी होती है, राइट? समटाइम्स सम बिलीफ्स बिकम सो इंटरट्वाइंड विद आवर पर्सनालिटी कि व्हेन समवन कम्स एंड चैलेंजेस अ बिलीफ ऑफ आवर्स, it feels like they're challenging our identity. This is called cognitive dissonance, right? And when someone comes ahead and tells to you कि आपकी जॉब जो है वो probably आपको wealthy नहीं बना सकती, it feels like it's an attack on your identity because it's what you've always believed, right? It has a belief which is deep set into your identity. तो I want you to unlearn this belief, genuinely unlearn this belief. बिकॉज आप 20s के अंदर, अर्ली 30s के अंदर इतना सेफ क्यों प्ले कर रहे हो? वाई आर यू प्लेइंग बाय सोसाइटी स्टैंडर्ड्स? यू शुड बी क्रिएटिंग योर ओन स्टैंडर्ड्स। बिकॉज जनरली आई डोंट, मैं ये बात आपको कभी भी तब ना बोलता अगर मैंने ये खुद प्रैक्टिस ना किया होता, राइट? मैंने खुद जो है वो MBBS 3rd ईयर के अंदर मुझे अंदाज़ा हो गया था कि यार मैंने ये चीज़ आगे प्रैक्टिस नहीं करनी, बिकॉज ड्यूरिंग 3rd ईयर आई वॉज सीइंग अ लॉट ऑफ पीपल ऑनलाइन हु वर मेकिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ मनी, राइट? एंड मैंने सोचा कि यार ये लोग मेरे से ज़्यादा केपेबल नहीं है। मैंने तो मेडिकल स्कूल के अंदर MD कैट मैंने क्लियर किया, राइट? मैंने एडमिशन क्लियर किया, राइट? मैंने MBBS के अंदर एडमिशन लिया, दैट इज़ क्वाइट अ बिग फीट, राइट? आई एम अ स्मार्ट पर्सन। मैंने A लेवल्स के अंदर, O लेवल्स के अंदर A's लिए, राइट? तो व्हाई डू आई डिजर्व टू नॉट बी मेकिंग एज मच मनी एज दीज काइंड्स ऑफ पीपल हु आर मच लेस टैलेंटेड देन मी? And it was a question of self-worth, right? Do I not believe in myself? Am I less talented? Am I less capable than these people? And the answer was no, right? So इस वजह से I decided to launch a business of mine in my 3rd year of medicine, in which I basically started a small copywriting business. उसकी मदद से मैंने शुरू में पैसे कमाना शुरू किए। देन आई बेसिकली स्टार्टेड टू ऑफर मार्केटिंग सर्विसेज, फेसबुक एड सर्विसेज टू कॉस्मेटिक क्लिनिक्स व्हिच वर लोकल इन माय एरिया, इन माय कंट्री। एंड पहले जो है वो मैं सिर्फ फेसबुक एड्स ऑफर करता था। देन आई यूज्ड टू ऑफर फेसबुक एड्स प्लस अपॉइंटमेंट सेटिंग सर्विसेज, कि जहाँ पे मैं उनके लिए एड्स रन करता था। एड्स रन करने के बाद जो भी मेरे एड्स के साथ इंटरैक्ट करता था, फॉर एग्जाम्पल मैं एस्थेटिक क्लिनिक्स के लिए लेज़र का अगर एड रन कर रहा होता था या फिर हाइड्रा फेशियल का एड रन कर रहा होता, तो जो भी अपॉइंटमेंट के लिए बुकिंग कराता था, मैं उन्हें कॉल करता था और उन्हें बोलता था कि अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रामिश स्पीकिंग फ्रॉम द ब्रांड दैट आई वाज वर्किंग विद, एंड आपने जो है वो अपनी लेज़र के लिए बुकिंग करवाई थी, आप एग्जैक्टली किस दिन के लिए या फिर आप किस टाइम के लिए बुकिंग कराना चाह रहे हैं? मैं इस तरह करके अपनी पूरी स्क्रिप्ट चलाता होता था। एंड आई यूज्ड टू कॉल hundreds of people every single day, hundreds of leads every single day. एंड उस टाइम पे जो है वो मुझे लग रहा था कि दिस इज़ अ कंप्लीट डेड एंड। आई वॉज पुटिंग इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, आई वॉज प्रॉस्पेक्टिंग टू मोर एंड मोर क्लाइंट्स। मैं दोबारा आउटरीच के ऊपर मेहनत पे मेहनत किए जा रहा था, मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस पे वीडियोस देखे जा रहा था, लेकिन मुझे ये एक डेड एंड लग रहा था क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्रूएशन नहीं नज़र आ रही थी इसके अंदर। बट मैं आपको बताता हूँ एक ऐसा सीक्रेट ऑफ द ऑनलाइन वर्ल्ड विच नो वन हैज़ एवर टोल्ड यू।
इट ऑल स्टार्ट्स विद वन स्मॉल स्किल। आप लोगों को लग रहा होगा ना कि यार मैं कॉपी राइटिंग क्यों स्टार्ट करूँ, कॉपी राइटिंग के थ्रू $50,000 पर मंथ तो कोई नहीं अर्न कर रहा। डजेंट मैटर, वॉट यू नीड इज़ अ फुट इन द डोर एंड यू नीड टू मेक योर फर्स्ट $1 ऑनलाइन। जब आप अपना पहला डॉलर ऑनलाइन अर्न करते हैं ना, अपना पहला स्मॉल काइंड ऑफ बिजनेस वेंचर स्टार्ट करते हैं, आप बिजनेसेस को जो स्मॉल सर्विसेज ऑफर करना शुरू करते हैं, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप इवेंचुअली जो है वो उस बिजनेस के अंदर और प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं एंड देन कहते हैं कि यार मैं इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, इसको भी सॉल्व कर लेता हूँ, और उसकी मदद से आप एक ज़्यादा तगड़ी किस्म की ऑफर बना लेते हैं। आई देन बेसिकली ट्रांजिशन टू कंटेंट मार्केटिंग वेयर आई बेसिकली यूज टू हेल्प बिजनेसेस ग्रो ऑन सोशल मीडिया, ऑन स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, राइट। एंड देन मैंने कहा कि यार मैं इतना ज़्यादा बिजनेसेस को ग्रो कर रहा हूँ, आई वॉज गेटिंग डिसेंट रिजल्ट्स फॉर दीज बिजनेसेस, राइट। तो व्हाई डोंट आई डू दिस फॉर माई सेल्फ। मैंने जो है वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन किया था, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा चेंज लाया था ड्यूरिंग माई 20s, राइट। तो इन माई 3rd year ऑफ मेडिसिन मैंने लाइक जनरली आई टुक चार्ज ऑफ माई लाइफ। मैं बहुत ज़्यादा मोटा था, आई वॉज 105 kgs एंड मैंने डिसाइड किया कि आई नीड टू लूज ऑल ऑफ दिस वेट, आई नीड टू गेट इन शेप एंड आई नीड टू सेट ऑल ऑफ माई लाइफ इन ऑर्डर। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने बहुत सिवियर काइंड ऑफ कटिंग डाइट के ऊपर मैं गया, विच वॉज रियली रियली अनहेल्दी बाय द वे, डोंट डू इट लाइक दैट। मैं 1400 कैलोरीज खाता था, आई एम बेसिकली 6'2" एंड उस टाइम पे मेरा वजन था 106 किलो एंड मैंने उससे जो है वो अपना वेट बिल्कुल कट करके मैं 74 kgs पे ले गया। मैं बिल्कुल इतना सा पतला हो गया था। आई विल हैव माई एडिटर पुट सम पिक्चर्स ऑन द स्क्रीन राइट नाउ फॉर यू। बट मैंने ये सारा वेट लूज किया एंड मैंने ये वाले अपने बिजनेसेस आहिस्ता आहिस्ता करके स्टार्ट किए टू द पॉइंट कि जहाँ पे आई स्टार्टेड अर्निंग अ लॉट, राइट। एंड देन मैंने इन माई 4th या फिर फाइनल ईयर ऑफ मेडिसिन मैंने ऑनलाइन कंटेंट बनाना शुरू किया एंड मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाता हूँ। मैंने जब ऑनलाइन कंटेंट बनाना स्टार्ट किया ना, या एक्चुअली ये जो कंटेंट वाली स्टोरी है मैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्टार्ट करूँगा। तो कहने का मकसद है कि मैंने फिर ऑनलाइन कंटेंट बनाना शुरू किया, देन मैंने कोचिंग करना शुरू की कि जहाँ पे मैं बेसिकली लड़कों को, मर्दों को, कुछ लड़कियाँ भी आती थी जिनको बेसिकली हेल्प करता था टू बेसिकली सॉर्ट देयर लाइव्स आउट, सेल्फ इंप्रूवमेंट काइंड ऑफ कोचिंग करता था ना। एंड इन लोगों को मैं हेल्प करता था एंड इस पॉइंट पे भी जो है वो आई वॉज मेकिंग क्वाइट लॉट ऑफ मनी, मोर देन 7 figures इन PKR, राइट। तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि यार ऑनलाइन वर्ल्ड की मुझे लेजिटिमेसी काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। मैंने ये भी देखा कि मैंने क्योंकि बिजनेसेस को पहले ग्रो करने में हेल्प किया हुआ था और मेरे सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी फंडामेंटल्स थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, तो आई वॉज एबल टू सरमास एन ऑडियंस ऑफ 400,000 पीपल अक्रॉस ऑल प्लेटफॉर्म्स इन अप्रॉक्सिमेटली 1.5 year। तो ये वाली सारी जो मैंने प्रोग्रेस इतनी ज़्यादा की, इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ दोज नाइट्स के वेयर आई वॉज कोल्ड कॉलिंग पीपल, where I was calling people on my leads list, where it all felt like it was completely a dead end, where मुझे लगता था कि ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर पैसे कमाई नहीं जा सकते, where मैं जो है वो कॉन्स्टेंटली यूट्यूब के ऊपर ट्यूटोरियल्स देखता रहता था टू फाइंड सम काइंड ऑफ हिडन स्ट्रैटेजीज टू लैंड अ क्लाइंट। अगर मैंने वो वाला एक्शन ना लिया होता और उस वाले टाइम के अंदर ये अनकंफर्टेबल स्टेप्स ना लिए होते, तो आज मैं यहाँ पे ना बैठा होता। मैं यहाँ पे अपने ऑफिस के अंदर बैठा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, in the heart of Islamabad. And उसके अलावा I am running 3 businesses alhamdulillah right now, a consulting company, my personal brand and my communities, and उसके अलावा मेरा अपना e-commerce brand by the name of Eternal. And alhamdulillah doing really well for myself without revealing any numbers, क्योंकि generally अगर numbers reveal करते हैं तो लोगों को ये थोड़ी सी harsh किस्म की बात लगती है पाकिस्तान के अंदर। तो लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी कितने अर्निंग्स हो जाती होंगी। लेकिन खैर, तो ये वाला सब जो प्रोसेस हुआ था, व्हाई डिड आई बेसिकली मेक दिस डिसीजन ऑफ क्विटिंग मेडिसिन, क्योंकि मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की, मैंने अपने सारी की सारी सर्टिफिकेशंस ली एंड उसके बाद मैंने मेडिसिन को खैराबाद कह दिया। व्हाई डिड आई से खैराबाद टू मेडिसिन? वेल इट वाज ऑल बिकॉज मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मैंने ट्रूली अपना पर्पस फाइंड कर लिया। पर्पस का मतलब ये है एंड जनरली सक्सेस का मतलब ये है, progressive realization towards a worthy ideal. Progressive realization towards a worthy ideal. Progressive realization towards a worthy ideal का मतलब ये है कि एक बड़ा गोल होना लाइफ के अंदर और उसकी तरफ कॉन्स्टेंटली वर्क करना और उसके साथ साथ जो है वो ग्रो होते हुए अपना आप नज़र भी आना। मैं आपसे जनरली ये बात पूछूंगा कि अगर आपको एक ऐसी जॉब नज़र आ रही हो जो कम्प्लीटली डेड एंड हो, जहाँ पे आपको कोई भी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, क्या आप वो जॉब ज्वाइन करेंगे? प्रॉबेबली नॉट, राइट। मेरे लिए भी यही था कि मुझे मेडिसिन के अंदर अपनी ग्रोथ नहीं नज़र आ रही थी, क्योंकि एक दफ़ा इस तरह हुआ था व्हेन आई वाज इन माय 4th year ऑफ मेडिसिन, आई बेसिकली sat with a senior who was a resident, general surgery resident.
मैंने उससे पूछा यार आप अभी कितना अर्न कर रहे हैं ना, इट वाज लाइक 26-27 ईयर्स ऑफ एज, जितनी मेरी इस वक्त एज है। एंड मैंने उससे पूछा कितना अर्न कर रहे हैं, ही सेड 70,000 रुपीज़, 1 in 4 कॉल्स, 70,000 रुपीज़, एंड एब्सोल्युटली एक्सक्रूशिएटिंग वर्किंग आवर्स, लूजिंग मसल मास, एब्सोल्युटली मिजरेबल। एंड आई डिसाइडेड कि यार दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट आउट ऑफ माई लाइफ। आई वांट टू टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, आई वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। एंड जब मैंने एक दफ़ा अपना पैर एंटरप्रेन्योरशिप के पूल के अंदर डिप किया था ना, उसका मुझे ऐसा नशा लगा कि मुझे मुझे लगा कि यार मैं कभी भी इस चीज़ को कभी भी क्विट नहीं कर सकता। तो मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि यार अगर आप अपनी लाइफ के अंदर रेस्टलेस फील कर रहे हो या फिर फील कर रहे हो कि मे बी देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ पर्पस इन योर लाइफ, मैं आपको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूँगा एंटरप्रेन्योरशिप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना। एंड ट्राई टू रियली डिस्कवर द ऑनलाइन वर्ल्ड, बिकॉज इट इज़ ट्रूली ट्रूली ब्यूटिफुल। एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो इस वक्त फाइनेंशियल सर्कुलेशन में, एंड इस वक्त जितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं वो इन हिस्ट्री किसी के पास भी नहीं थी। एंड इट हैज़ नेवर बिन एज ईजी एज इट इज़ टुडे टू मेक मनी ऑनलाइन, एंड specifically with AI as well, it has become even more easier, because now you can basically create like ads for e-commerce brands out of completely thin air, and आप जो है वो फेक पर्सनस के साथ बना सकते हो, यू कैन सेल दैट एज अ सर्विस। आप AI के थ्रू कॉपी राइटिंग कर सकते हो। आपको जो है वो बिल्कुल स्क्रैच से कॉपी राइटिंग मैकेनिकली नहीं करनी पड़ती जिस तरह मुझे करनी पड़ी थी। यू हैव द मोस्ट इंफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड, यू हैव द मोस्ट काइंड ऑफ resources in the world, and it has never been this easy. So I want you to, as an actionable step, do something today that brings your higher self version to fruition. यानी कि आपका जो हायर सेल्फ है, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर, एंड बी एज डिलूजनल एज पॉसिबल। आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ के अंदर? इज इट ए गैराज फुल ऑफ ब्लैक SUVs? इज इट a nice office? Is it an amazing home? Is it a fulfilled kind of family? Is it wealth? Whatever those things are, write them down on a piece of paper and never let anyone tell you कि your goals are unrealistic. Because मैं आपको एक बात बताता हूँ, there is a certain group of people or a certain plethora of people who basically go against this kind of opinion जो मैं आपको इस वक्त बता रहा हूँ. I want you to not listen to them, because वो सारे लोग जो है वो अपनी लाइफ के अंदर छोटी छोटी आउटकम्स चाहते हैं. They don't want to be A players. They don't want to be genuine kind of thought leaders. And I don't want you to think like that. Whatever field you're in, try to become an A player at it, right? तो अगर आप A player बनना चाहते हो, why are you listening to B players? Why are you listening to these people who go by the book? Even if it is old people and people who seem to be in positions of power, if they come and tell you that this is not the way, don't fucking let them tell you that this is not the way. You create the way, right? And आप जितनी ज़्यादा आपके लिए possibilities हैं, it can never be put into words. If you truly put your head down and try to make shit happen, trust me, a lot can change over a span of 6 months, and that is a guarantee from me to you, right? तो the second thing which I want to talk about is लोग क्या कहेंगे. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी के अंदर कि भाई लोग क्या कहेंगे. तो मैं ये पूरा जो आपका बहाना है ना लोग क्या कहेंगे ऑफ नॉट स्टार्टिंग, कि भाई मैं स्टार्ट इस वजह से नहीं करना चाहता ऑनलाइन कंटेंट बनाना, ऑनलाइन बिजनेस करना, बिकॉज लोग क्या कहेंगे. बिकॉज ऐसा होता है ना कि लेट्स से कि यार आगे ईद आ रही है, राइट? ईद पे जो है वो हमारी सारी फैमिलीज इकट्ठी होती हैं. व्हाट इफ़ सारी फैमिलीज इकट्ठी हो जाती हैं, कज़न एक बोलता है कि यार मैं जॉब कर रहा हूँ FBR के अंदर, ठीक है. एक कज़न बोलता है कि मैं इस खूबसूरत किस्म के इदारे के अंदर जॉब कर रहा हूँ. एक कहता है कि यार मैं डॉक्टरी कर रहा हूँ, और आप बीच में बोलते हो ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ. रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा किसको मिलती है? सबसे कम किसको मिलती है? सबसे कम आपको मिलती है. लेकिन फुलफिल्ड सबसे ज़्यादा कौन महसूस कर रहा है? I want you to genuinely ask this question from yourself, because genuinely when I'm in a gathering with my family, I know कि even अगर मेरे पे कोई frown भी करता है, I feel fulfilled with my life, and that is the only thing that matters to me. Because back when I started, मैं आपको एक मज़े की story सुनाता हूँ. When I started, there was this one person in my university who called me. मैं वो वर्ड इस वक्त यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि वो एक बुरा वर्ड है, लेकिन मैं उसकी स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपने एडिटर से बोलूँगा कि यहाँ पे ऐड कर दे. तो मैंने जब वीडियोस बनाना शुरू की तो उसने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया मेरे लिए. एंड देन उसके बाद जो है वो जब मैं ग्रो करना शुरू हुआ, जब मेरा इंस्टाग्राम ग्रो करना शुरू हुआ, तो उसने ये रिप्लाई किया मेरी स्टोरी पे कि भाई आप तो किंग हो. एंड देन उसके बाद जब मैंने अपनी कम्युनिटी AI एक्सेलरेटर लॉन्च की, तो उसने ये रिप्लाई किया मेरी स्टोरी के ऊपर कि भाई मैं भी ज्वाइन करना चाहता हूँ.
एंड आज भी जो है वो मुझे वो मैसेज करके भी अक्सर पूछता है कि मुझे थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर गाइड कर दो कि कैसे हम ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं एक्स वाई ज़ेड। तो इफ़ you're someone who has started making content online and there are people frowning on you saying कि ये क्या बकवास कर रहा है, ये हवाई इनकम के पीछे क्या लगा हुआ है, all of these people who are saying these kinds of things, right, do not listen to them। तो अगर आप ऑनलाइन कंटेंट बनाना स्टार्ट किया हुआ है, आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है एंड लोग आपसे बोल रहे हैं कि भाई आप क्या हवाई इनकम के पीछे पड़े हुए हो, आप अपनी डिग्री के ऊपर फोकस करो, आप अच्छी जॉब के ऊपर फोकस करो, तो डू नॉट लिसन टू दैम। बिकॉज जो ये लोग कह रहे हैं ना, अगर आपको जेन्युइनली सेंस ऑफ फुलफिलमेंट महसूस हो रही है उस चीज़ के अंदर जो आप कर रहे हो एंड यू आर जेन्युइनली फीलिंग लाइक यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स अ वर्दी आइडियल, तो no one else's opinion matters, only your opinion matters। because I want you to genuinely ask yourself, do you want to be like those people जो आपको ये तोहमतें लगा रहे हैं, जो आपके आगे ये बकवास कर रहे हैं, or do you want to be like the person which you know you can be, your higher self, right? तो do not listen to these people। लोग क्या कहेंगे नहीं मैटर करता, राइट? बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमारे एल्डर्स बोलते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस की तरफ ना जाओ या फिर जॉब की तरफ ही रहो, सेफ पाथ सही है। तो देखो, मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़, आपने अपने पेरेंट्स को कभी भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। हमेशा अपने पेरेंट्स को सर आंखों के ऊपर रखो, ठीक है? लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिसाइड कि आप फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ क्या करना चाहते हो। बिकॉज योर पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी लिविंग योर रियलिटी, यू आर गोइंग टू बी लिविंग योर रियलिटी। योर पेरेंट्स आर नॉट गोइंग टू बी फीडिंग योर फ्यूचर फैमिली, यू आर गोइंग टू बी फीडिंग योर फ्यूचर फैमिली। तो यू नीड टू बी मेकिंग डिसीजंस अकॉर्डिंग टू वट एवर सीम्स बेस्ट टू यू। जो आपको लग रहा है कि यार मुझे इसके अंदर ऑनलाइन फ्रॉम अ वेल्थ स्टैंड पॉइंट फ्यूचर नज़र आ रहा है। बिकॉज यार देखो, हम मर्दों की वैल्यू जो है वो इसी चीज़ से डिटर्मिन हो रही होती है कि हम पैसा कितना कमा रहे हैं। एंड आपको ये बात हार्श लगती होगी, लेकिन दिस इज़ ट्रू। आप बाहर जाते हो तो रिस्पेक्ट उस बंदे को ज़्यादा मिलती है जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जिसका स्टेटस होता है, राइट? तो आपने कल को जो है जब अपने बीवी बच्चों को भी फीड करना है, जब आपने अपनी फैमिली को भी रन करना है, तो इसके अंदर ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आप प्रोवाइड कर सको उनके लिए, राइट? बिकॉज यू वांट कि आपके जो सन्स एंड डॉटर्स इंशाल्लाह होंगे, उनके लिए आप अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सको, अच्छा खाना, अच्छा शेल्टर प्रोवाइड कर सको, राइट? तो आपको अगर कुर्बानी देनी पड़ती है अपनी 20s और 30s के अंदर और लोगों की तोहमतें सुननी पड़ती हैं, तो यार शर्फ के साथ उन तोहमतों को सुनो और लगे रहो अपने काम के अंदर। बिकॉज वही वाली बात होगी कि जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये जो लड़का था जो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर भी था, ये भी मुझे बोल रहा था कि भाई क्या कर रहा है और ये वो, और फजूल काम कर रहा है। लेकिन फिर उसके बाद लोग आपसे ही आके पूछते हैं कि भाई तुमने कैसे कर लिया। तो ये ना परवाह करो कि लोग क्या कहेंगे। यार यू डोंट वांट टू बी लाइक लोग, यू वांट टू बी लाइक योर हायर सेल्फ, यू वांट टू बी ओनली लिसन टू पीपल हु हैव प्रोबेबली डन व्हाट यू वांट टू डू, राइट? तो इस वजह से डू नॉट लिसन टू व्हाट पीपल आर सेइंग। द ओनली पर्सन हुज ओपिनियन मैटर्स इज योर ओन ओपिनियन। एंड रिस्पेक्टफुल डिसोबीडियंस एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ जो है वो मैं बहुत ज़्यादा स्टैंड करता हूँ। रिस्पेक्टफुल डिसोबीडियंस का मतलब ये होता है कि अपने पेरेंट्स के साथ अपनी ऐसी रिलेशनशिप बिल्ड करना कि जहाँ पे आपकी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट हो अपने हाउस होल्ड के अंदर कि अगर आप बोलो कि भाई अम्मी अब्बू, मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूँ, इट इज़ द बेस्ट फॉर मी, इट इज़ द बेस्ट फॉर माई फ्यूचर, इट इज़ द बेस्ट फॉर माई वेल्थ, फॉर माई फ्यूचर लाइवलीहुड, तो आपके पेरेंट्स उस चीज़ पे आपको सपोर्ट करें। तो रिस्पेक्टफुल डिसोबीडियंस का मतलब ये भी होता है कि अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, लेकिन वो पाथ चूज़ करना जो आपको पता है कि फ्यूचर होल्ड कर रहा है। आपके पेरेंट्स आपको बेसिकली उसी वर्जन ऑफ सोसाइटी के ऊपर ट्रेन कर रहे हैं जो वर्जन ऑफ सोसाइटी उन्होंने देखी थी। तो उन्होंने तो यही देखा था ना कि 3 रेज़्यूमेज़ जो है वो आप सबमिट करते हो, 3 जॉब एप्लीकेशंस करते हो, उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है। लेकिन आजकल की रियलिटी क्या है, राइट? आजकल की रियलिटी क्या ये है कि ये जो आपको आवाज़ आ रही है ना, ये क्या कहते हैं, साइलेंसर की, या क्या कहते हैं इसको यार, आई एम नॉट अ कार पर्सन, एग्जॉस्ट की। इस तरह की एग्जॉस्ट वाली गाड़ियाँ जो है ना वो सिर्फ वही चला रहे हैं जिन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए। तो अगेन मैं ये बात भी प्रेफेस करके बोलूँगा कि यार देखो, बिजनेस इज नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है? बिजनेस के लिए स्ट्रेस टॉलरेंस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। बिजनेस के लिए यू जेन्युइनली नीड अ स्ट्रॉन्ग हार्ट, राइट? एंड अगर आपको लगता है कि यार बिजनेस इज नॉट रियली फॉर यू एंड you're passionate about a specific field, let's say you're passionate about medicine, you're passionate about law, you genuinely feel like that is your life purpose, so I want you to go ahead and become an A player at it. Don't let anyone gaslight you into thinking that what you're doing is wrong. मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रहा हूँ ये कि आप बिजनेस की तरफ देखो जिन लोगों को नहीं पता कि वो अपनी स्पेसिफिक करियर्स के अंदर क्यों है, राइट?
Do not conform. Do not do things just because you were told कि this was the right path. अगर आपका पैशन है 110% फॉलो करो. मेडिसिन आपका पैशन है, become the fucking best at it. लॉ आपका पैशन है, become the fucking best at it. लेकिन if it is not your passion and you're doing it just out of conformity, तो then why are you doing it, right? तो लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह नहीं करनी. थर्ड पॉइंट, मैरिज स्टेटस डायलेमा. अब हमारी सोसाइटी के अंदर एक प्रॉब्लम प्रेवलेंटली ये चलता है कि हमें बताया जाता है कि यार शादी इंपॉर्टेंट है, विच इट इज़, राइट, विच इट इज़, एंड शादी जो है वो जल्दी करनी चाहिए, जो करनी चाहिए. लेकिन आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जब आप लड़की का हाथ मांगने के लिए जाते हो तो आपसे जो पहला सवाल पूछा जाता है वो ये है कि आपकी आमदनी क्या है, राइट. तो आपको मैरिज के लिए मनी चाहिए, पैसे चाहिए, मैरिज के लिए पैसे चाहिए. पैसे के लिए जो है वो आपको 20s या 30s के अंदर बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अच्छे पैसे आप नहीं अर्न करने वाले अपनी अर्ली 30s तक, अगर आप पाकिस्तान में बैठे हुए एक पाकिस्तानी कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो, ठीक है. एंड अब एक तरफ से आपको बोला जा रहा है कि जल्दी शादी करो, और दूसरी तरफ जो है वो लेट 20s आ गई हैं, अर्ली 30s आ गई हैं, लेकिन यू आर स्टिल नॉट एट अ प्लेस एट द मोमेंट वेयर यू कैन मैरी. तो व्हाट इज द सोल्यूशन टू दिस? मेरा जनरली आपसे सवाल है. The solution to this again is to start a business in your 20s. And now a lot of people might be saying कि यार अगर आप सबको बोल देंगे कि business start कर दो तो jobs कौन करेगा? My response to that is, अगर मेरे जैसे 100 लोग भी पैदा हो जाते हैं ना और रोज आके इसी तरह की वीडियोस के ऊपर बोलते रहते हैं कि business start करो, there will still be people who are doing jobs, right? Just because of the fact conformity, right? Conformity फिर भी exist करेगी, हम अपने beliefs के साथ tied रहते हैं. 100 लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं उनमें से एक बंदा ही इतना थोड़ा सा हिला हुआ होगा जो कहेगा कि यार मैं जेन्युइनली इस बंदे की बात सुन लेता हूँ. मे बी व्हाट ही इज सेइंग माइट बी मेकिंग अ लिटिल बिट ऑफ सेंस. मे बी इट माइट बी स्टिकिंग मी इन द डोम एंड मे बी आई शुड स्टार्ट समथिंग ऑफ माय ओन. बट द 99 अदर पीपल विल से कि यार सेफ्टी, कंफर्मिटी, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है बिजनेस स्टार्ट करना, पता नहीं चलेगा भी या नहीं चलेगा, एंड इस वजह से वो जॉब्स करेंगे ही करेंगे. तो ये ना समझना कि भाई मैं अगर आके बोल रहा हूँ कि भाई बिजनेस करो, इसका मतलब है हर कोई बिजनेस करने लग जाएगा. हर कोई बिजनेस नहीं करेगा. 1000 साल गुजर जाएंगे, मेरे जैसे 1000 और आ जाएंगे, लेकिन फिर भी जॉब्स वाले एग्जिस्ट करेंगे. तो आपने जो है वो अगर आप अर्ली मैरिज भी करना चाहते हो तो आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा. मैंने पर्सनली अभी तक मैरिज नहीं की. इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे स्पेसिफिकली रीज़न ये है कि मेरे अपने कुछ गोल्स हैं जो मैं हिट करना चाहता हूँ, एंड दिस इज़ अ पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ माइंड कि जहाँ पे मैं अपने कुछ गोल्स हिट करना चाहता हूँ और तब तक मैं अपनी शादी नहीं करना चाहता, राइट. एंड इंशाल्लाह जब वो मैं गोल्स हिट कर लूँगा तो देन आई विल स्टार्ट लुकिंग टूवर्ड्स प्रॉस्पेक्ट्स एंड आई विल स्टार्ट लुकिंग for if it is a good move for me to marry at the moment or not. But एक और चीज़ ये है कि यार देखो, I consider myself a high performance human being and I'm not afraid to say that because I am a high performance human being. And if you consider yourself a high performance person as well, आपके अपने standards बहुत ज़्यादा high होंगे. आप कुछ expectations रखोगे अपनी wife से भी. And I don't want you to settle for anyone who is not up to your standard. इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आप जो है वो अगर लड़की भी पैसे नहीं कमा रही तो आप उससे शादी ना करो, नहीं. लेकिन लड़कियों के लिए भी कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं जो उन्होंने हिट किए हुए हों, तभी आप उन्हें कंसिडर कर सकते हो फॉर मैरिज. Do you think that that person is marriage material or not? Do you think that the person that you're looking at is going to be a good mother to your future children or not? Do you think that person is confident enough to carry herself or not? Do you think that person presents herself well enough? Do you think that person genuinely can be a good partner to you where she can support you on your specific journey? Because as high performers अगर हमें pessimistic partners मिल जाते हैं ना, जो बोलते हैं कि यार तुम और क्यों कर रहे हो, तुम अगला बिजनेस क्यों स्टार्ट कर रहे हो, अभी अच्छा तो कमा रहे हो, क्या ज़रूरत है करने की. These kinds of partners are going to slow down your growth. But the kind of partner जो आपकी विजन के अंदर हिस्सा लेगा और बोलेगा कि यार जो तुम कर रहे हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, I am with you on your hard days and on your good days as well, वो पार्टनर आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा. तो this is one of the biggest decisions that you will ever make in your life, and you don't want to be making these decisions out of haste, out of impatience. You need to be making this decision in a very informed kind of way कि जहाँ पे आपको पता है कि यार ये जो मैं पार्टनर चूज कर रहा हूँ, this partner is best for me. तो इस वजह से जो है वो ये जो मैरिज और स्टेटस डायलेमा है, असल में प्रॉब्लम यही है कि सोसाइटी हमें बोल रही है कि मैरिज जल्दी करो, लेकिन जल्दी मैरिज करने के लिए हमें पैसे कमाने की ज़रूरत है. जल्दी पैसे कमाने के लिए जो है वो हमें बिज़नेस करने की ज़रूरत है. बिज़नेस करते हैं तो हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, और इसलिए जो है वो हम लोगों ने ये रिस्पेक्ट के पीछे नहीं भागना. एंड मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि कोई शेटी काइंड ऑफ बिजनेस मॉडल स्टार्ट कर दो. लाइक बिजनेस करना इज़ नॉट समथिंग विच इज़ कंसिडर्ड लोली.
आप जब बना रहे होते हो ना अपना बिजनेस, तब लोग आपको बोल रहे होते हैं कि क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, लेकिन जब आप बना लेते हो तो लोग आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि आपके पास पैसा होता है, राइट? एंड इसकी आपको लाइव एग्जांपल जो है वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर भी दिखा दी, ऑफ दैट वन पर्सन who used to say all kinds of stuff to me when I started making videos, but then that person started asking me how I did it. तो इस वजह से ये 3 प्रॉब्लम्स बेसिकली मैं चाहता था कि मैं आप लोगों के लिए कवर करूं इस वीडियो के अंदर. आई होप यू फाउंड दिस हेल्पफुल, एंड दिस वाज अ लिटिल बिट ऑफ अ रैंट काइंड ऑफ वीडियो, बट इफ यू वांट मोर वीडियोस लाइक दिस, बिकॉज आई डू एंजॉय मेकिंग दीज क्वाइट अ लॉट एज वेल. जो मेरी नॉर्मल वीडियोस होती हैं, दे हैव अ सेट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जिसे मैं फॉलो करता हूँ, एंड उसको मैं चाहता हूँ कि यार एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ लेंथ के अंदर रखूँ. तो let me know in the comments as well if you prefer these kinds of videos or if you prefer the edited ones, and I'll make sure I make videos for you accordingly. तो thanks for watching this video. अगर आप चाहते हो कि आपको एक फ्री ट्रेनिंग मिल जाए जिसके अंदर मैं आपको सिखा दूं कि आप जो है वो 2026 के अंदर कौन सी स्किल पिक कर सकते हो which is the best for you, तो you will find that on the top link of the description. And at the end, remember that for those of us climbing to the top of the food chain, there can be no mercy, my friend. There is but one rule: hunt or be hunted. Thanks for watching.